What is a tense? How many tenses does English language have? And where do we use them? Hello everyone, in today's video I'll walk you through all the tenses that English language has and you will get an overview of all the tenses so that you can use them more confidently next time. What's a tense? Tense is a form of verb which tells us the time of an action. ये बताता है कि action कब हुआ. Correct? Now how many tenses does English have? English has 12 tenses. कितने हैं? 12 tenses. अब 12 the number is scary, right? नंबर डरावना है, but नंबर पे फोकस ना करें क्योंकि इनका easy pattern भी है समझने का. In today's video, I'll show you how you can understand it, find a pattern, and then you can use it confidently. Now these 12 tenses are further categorized into 3 main tenses, past, present and future. और इनके भी सब कैटेगरीज हैं. जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट में 4 एस्पेक्ट्स हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है? सिंपल सिंपल, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट, perfect continuous, perfect continuous. This is why I said if you understand the aspects, you will be able to master all the tenses. So जो 12 tenses डरावने लग रहे थे वो actually डरावने हैं नहीं क्योंकि इनका एक पैटर्न है. Similarly, future में भी simple, continuous, perfect and perfect continuous है. Now कुछ grammarians का मानना है. Some grammarians believe that English has 2 main categories, past and present, whereas future is not a main tense. Why? Because it has or it uses modal verbs to express itself. क्योंकि वो एक possibility है future का. However, if you're preparing for competitive exams, I recommend that you practice and treat this as a main category too. Correct? अब हम देखते हैं इनके examples. So now let's take a closer look at all the present tenses with examples. अभी हम present tenses को समझेंगे और एक example हर बार लेंगे. Example एक ही रखते हैं. Let's keep one example. Let's take the verb work. अभी हम एक ही verb के साथ सारे अलग अलग forms देखेंगे. एक ही verb के अलग अलग forms easy रहेंगे समझने के लिए. It will be easy for us all to understand with one verb. Present simple. I work. मैं काम करती हूँ. जनरल ट्रूथ, कोई फैक्ट देना है, रूटीन देना है ना. सो आई वर्क, आई स्टडी, आई ईट, आई स्लीप, आई ड्रिंक, आई रन, जो भी एक जनरल स्टेटमेंट है. आई वर्क, मैं काम करती हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अभी हम कर रहे हैं, राइट नाउ, इस वक्त. आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ. वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? यू आर स्टडिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं. So I am working, मैं काम कर रही हूँ. Present perfect, I have worked, मैंने past में काम किया है but recently complete किया है. अभी अभी, बहुत पहले की नहीं, अभी अभी 1 घंटे पहले मैंने homework complete किया मान लीजिए. So you can say I have completed my homework just now, right? जो अभी हमने काम खत्म किया है उसमें यूज कर सकते हैं I have. So I have worked. Present perfect continuous, अब ये I have been working, मैं काम कर रही हूँ. अब डिफरेंस क्या हुआ? ये भी मैं काम कर रही हूँ, ये भी मैं काम कर रही हूँ. Where is the difference? इसमें हम वो बता रहे हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं, right now. We are talking about what we are doing right now in present continuous. I am working. Whereas present perfect continuous में I have been working में हम एक ड्यूरेशन दे रहे हैं. मैं पिछले 2 घंटे से मान लीजिए काम कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ I have been working for 2 hours. तो इसमें हम एक ड्यूरेशन दे रहे हैं. हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं हम अब तक क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं. पिछले 2 घंटे से हम काम कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वी हैव बिगन इन द पास्ट. पास्ट में हमने एक एक्शन स्टार्ट किया है बट वो अभी तक प्रेजेंट तक कर रहे हैं. This we can use for talking about things that I've been doing for last 10 years. Let's say मैं हर रोज सुबह जॉगिंग जा रही हूँ पिछले 10 सालों से. So I can say I have been jogging for last 10 years every morning. मैं हर रोज जॉगिंग करती हूँ, right? So I have been jogging. Simple. Now let's take a closer look at the
पास्ट टेंसेस। अभी हम पास्ट टेंसेस को समझते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट में आई वर्क, मैंने काम किया, खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल अभी 11 बज रहे हैं, अगर आप पूछते हैं 9 बजे क्या कर रहे थे, 9 बजे क्या कर रहे थे, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी। 9 बजे मैं काम कर रही थी, वो चल रहा था उस वक्त, करेक्ट। पास्ट परफेक्ट, आई हैड वर्कड, मैंने काम किया था, अब नहीं कर रही हूँ, पहले किया था। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बिन वर्किंग। अब इसका भी ट्रांसलेशन हिंदी में यही होता है, मैं काम कर रही थी। बट देयर इज अ कैच, समझने वाली बात यह है, इसमें आप वो बताते हैं जब आप 9 बजे कर रहे थे, इसमें आप एक ड्यूरेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बज रहे हैं 11, मान लीजिए 8, 9, 10, ठीक है, अभी बज रहे हैं 11, मैंने 8 से 9 काम किया। तो इस दौरान अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट वर यू डूइंग, मैं कहूँगी आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, क्योंकि उस दौरान मैं काम कर रही थी। बट 10 बजे अगर आप मुझे बैठे हुए देखते हैं, भाई बैठी क्यों है, वाई आर यू सिटिंग, वाई आरंट यू वर्किंग, बैठी क्यों है, काम क्यों नहीं कर रही, मैं कहूँगी आई हैड बिन वर्किंग, अब तक मैं काम कर रही थी, आई हैड बिन वर्किंग फॉर 1 आवर, राइट। तो वो एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, अब तक मैं काम कर रही थी, आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, राइट, डिफरेंस है। सो मैं काम कर रही थी, अब तक मैं काम कर रही थी, तो आपको एक ड्यूरेशन देना पड़ेगा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 1 आवर, 1 वीक, 10 years, 1 month, एक ड्यूरेशन देना पड़ेगा, ये है डिफरेंस। अब प्रोसीड करते हैं भविष्य की तरफ। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर सिंपल, आई विल वर्क। अब फ्यूचर टेंस में हम हेल्प लेते हैं मॉडल वर्ब विल का, ओके। सो आई विल वर्क, मैं काम करूंगी, फ्यूचर कल की बात, आई विल वर्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रही होंगी। कल सुबह 9 बजे, इट्स मंडे, ऑफिस आवर्स, 9 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाती है, सो आई विल बी वर्किंग एट 9। 9 बजे क्या कर रही होंगी, आई विल बी वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट, अब 9 to 5 का ऑफिस है, मान लीजिए 5 बजे आप मुझे 5 बजे मैं क्या कर रही होंगी, व्हाट विल आई बी डूइंग एट 5 टुमारो, आई विल हैव वर्कड, मैं काम कर चुकी होंगी, ओके। तो फ्यूचर का प्रोजेक्शन है, आई एम सेइंग व्हाट आई विल हैव डन टुमारो बाय 5, कल 5 बजे तक मैं काम कर चुकी होंगी, आई विल हैव वर्कड। देन कम्स अगेन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बिन वर्किंग, कल सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे का काम मैं कर चुकी होंगी, सो आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर लास्ट 8 hours टुमारो, ओके। दिस इज इट। तो अगर आप करती हूँ, किया है, करूँगी समझते हैं, देन योर बेसिक्स, फिर आपके बेसिक्स इंग्लिश टेंसेस के ऑलरेडी क्लियर हैं, देयर इज नो नीड टू फियर। Today we have understood them globally. Going forward in my next video, we will focus on present tenses and practice them, then past tenses and practice them, and so with the future tenses. So here are all 12 tenses in one glance for you. ये सारे 12 tenses आपके लिए इकट्ठा लिख दिया है मैंने, past, present and future. These are the simple tenses, continuous tenses, perfect tenses and perfect continuous tenses. In my next video, अगले वीडियो में we are going to focus on all the present tenses. हम present tenses को समझेंगे, चारों aspects को समझेंगे, कब यूज कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, which I will put up in the next week and practice it. आज था अंडरस्टैंडिंग, अगली बात है प्रैक्टिस की बारी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है एंड टेंसेस समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज रिलेटेड टू टुडेज वीडियो, दोज ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। डू स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सारे प्रेजेंट टेंसेस को अच्छे से समझेंगे, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे उनको फॉर्म करना है, ये भी समझेंगे। सो प्रेजेंट टेंसेस में हमारे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सारे हम कवर करने वाले हैं in the next video, which I will be putting up in the next week.